Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. Today is the 5th of September, so this is going to be a short solo episode like the 5th of every month. I turned 36 on 25th August. And the plan was to talk about my learnings and experiences so far. जैसे 36 things I learned तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता. So initially I thought कि 3 + 6 = 9, तो 9 things I learned कर दूँ. पर मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं है, so I thought some more. Even मेरे Instagram stories पे मैंने पोल किया जहाँ पे I found out कि you want to hear about my learnings. So मैंने थोड़ा और सोचा and decided to do it the Matri way. Instead of talking about learnings, I decided to share my thoughts. Now these thoughts are specific to the season of the life I am in right now. But ये बने तो मेरे life experiences से ही है ना. So here goes. As a young adult, मुझे लगता था कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, which is so cool. ये भी लगता था कि एक सर्टेन एज के बाद आई विल नो कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में और मैं वही करती रहूंगी. मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसा ही करते हुए देखा था, बट एज आई ग्रू ओल्डर ऐसे कोई झकास क्लैरिटी नहीं आई कि यही मेरा एब्सोल्यूट पाथ है. कहते हैं ना लाइफ फिगर्ड आउट होना, वो फीलिंग नहीं आई. आई हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स पर्सनली एंड प्रोफेशनली कि व्हेन आई लुक बैक आई रिमेंबर कि डिफरेंट स्टेजेस पे मुझे लगता था कि यही मेरा लाइफ पाथ है, पर ऐसा होता नहीं था और मैं फिर परेशान हो जाती थी कि क्या करूं. पर्पस क्या है लाइफ का? सिक्योरिटी वाली फीलिंग कैसे आए? बेसिकली आई वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड मोस्टली ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट सीम अनसर्टेन, या मुझे जहां लगता है कि आई विल नॉट सक्सीड. पेशेंस की कमी एंड अगेन द नीड टू कंट्रोल. लाइफ चल रही थी कंफ्यूज सी. देन आई फाउंड माई लाइफ कोच. Okay, don't worry, I'm not going to bore you. Just listen for a minute. In one of my sessions with Sanjeet, he said कि क्यों चाहिए absolute purpose? Why can't you just enjoy what you're doing at the moment while still exploring your next move? Then I read somewhere कि what if life का purpose ही एक चीज से दूसरी चीज पे मूव करते रहना है, डिफरेंट चीजों को करते रहना है while trying to enjoy the process. The truth is कि मैंने लास्ट 36 ईयर्स में यही किया है और फिर भी एक सिंगल एम की तलाश में लगी हुई हूँ. आयरॉनिक राइट? मुझे लगता है कि सबने अपनी लाइफ फिगर आउट कर रखी है एक्सेप्ट मी. दूसरे लोगों से बात करने के बाद मेनी टाइम्स आई फील इवन मोर स्ट्रेस्ड कि इन्हें तो पता है कि क्या करना है, तो मैं ही क्यों अटकी हूँ. आई मस्ट बी रियली डम्प. Okay, so negative self-talk, talking badly to myself is probably my biggest problem, but इस बारे में कभी और बात करेंगे. Do you also feel कि you are an adult and maybe in your 30s like me and still haven't figured out life? तो सबसे पहले तो मुझे Instagram पे DM करो, खूब सारी बातें करेंगे. बहुत मजा आने वाला है कॉन्वर्सेशन में. So talking about me, I have a good family life with a nice husband and an adorable daughter. But I constantly feel scared about what future holds, even though I can't do much about it. I worry about having enough money for our retirement, for a higher education and whatnot. We are doing what we can, and this episode is not about such conversations, but I just mentioned it to let you know कि अगर आपको भी ऐसे thoughts आते हैं तो आप अकेले नहीं हैं. I am with you. Personally, I want to become a better person who is less harsh on herself, or at least has the guts to do what it takes despite having all the self-sabotaging thoughts. Again, working on it with my therapist, and I will talk about my learnings from therapy in another episode. आज मैं professional aspect के बारे में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ. So, I'm a social media marketer and a podcaster.
To many people, it looks like I am doing so well in life, doing what I enjoy and stuff. तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, घर से ऐसा क्या ही कर लेती होगी. बट मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, एंड आई फील दैट यू माइट रिलेट. आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स टू नाउ. जो मैं अभी कर रही हूँ वो नहीं छोड़ना है अभी, बट कुछ और ऐड करना है, बट आई डोंट नो वट. आई ऑल्सो फील दैट समथिंग इज कमिंग, पर काफी फॉग है तो दिख नहीं रहा है कि क्या. आपको भी ऐसा लगता है क्या? सी, आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, बट आई वांट मोर, एंड दैट्स ओके. कीप लुकिंग, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड. ऑल्सो डोंट क्लोज योर ब्रेन टू न्यू थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज. पर्सनली आई हैव 36 years का एक्सपीरियंस, तो आई नो what works so far and I can decide when opportunity presents itself. कंप्लीटली मेच्योर एंड रेडी तो हम शायद कभी फील नहीं करते, चाहे कुछ भी एज हो. लाइक when my father died last year, my mother was 56 years old and her thoughts were, now I don't have anyone. I have become the oldest. I don't know if I'll be able to do things right. तो if she can feel like it at 56, मैं क्या चीज़ हूँ? इनफैक्ट जिन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है उन्हें भी नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी. प्लान होना अच्छी बात हो सकती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और मेरा तो प्लान ही पूरा नहीं है. सो द कंट्रोल फ्रीक इन मी इज कॉन्स्टेंटली वरीड. आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम बाय टॉकिंग टू माई सेल्फ रैशनली एंड मेनली बाय टॉकिंग टू माई थेरेपिस्ट. सो या, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू नाउ, but I don't know 100% कि वो है क्या. Then, this morning I got guidance and it came from my favorite Jenna Kutcher. In her Instagram stories, she was talking about the same thing कि she is sensing a change but doesn't yet know कि वो है क्या. Then she suggested doing something which I am starting today. Today is 1st September and yes, sometimes I do record so close to the release date. तो आज सुबह ही जेना ने अपनी स्टोरीज में ये सब शेयर किया एंड शी सजेस्टेड अ 30-day चैलेंज. अब ये चैलेंज के बारे में शी हैड हर्ड ऑन अनदर पॉडकास्ट, सो आई वेंट टू दैट पॉडकास्ट एंड लिसन टू द एंटायर एपिसोड विच इज ऑलमोस्ट 2 hours लॉन्ग. इस पॉडकास्ट का नाम है ध्रुव पुरोहित पॉडकास्ट एंड द एपिसोड आई एम टॉकिंग अबाउट इज एपिसोड 70, जहां पे एलेक्स बनायन इज ध्रुव's गेस्ट. एलेक्स इज द ऑथर ऑफ द थर्ड डोर. Now, I had never heard of any of these people, but I liked what they were talking about in this episode. Alex has devised a 30-day challenge for people who feel stuck in life. I found it very interesting, so sharing it with you. Note it down. इस चैलेंज में आपको 30 days तक रोज सोने से पहले 15 minutes के लिए जर्नल करना है. And maybe journaling is not your thing, but please keep listening. So Alex has given 3 questions that you have to answer every night. Number 1, what filled me with enthusiasm today? Number 2, what drained me of energy today? It can be a person or a situation or anything else. Question number 3, what did I learn about myself today? इन questions के आंसर कोई बहुत profound नहीं चाहिए. एलेक्स ने इनफैक्ट बोला कि मे बी द एटीट्यूड ऑफ द बरिस्ता एट द कॉफी शॉप इन द मॉर्निंग मेड यू फील एंथुसियास्टिक, सो राइट दैट. ऐसी सिंपल चीजें लिखनी है. I'd also suggest not making it complicated, नहीं तो पक्का you will not continue with it. तो जो आंसर सबसे पहले आए वो लिखो. He suggested कि write a few lines instead of just bullet points. Do this every day for 29 days. कभी मिस हो जाए तो फिर भी just make 29 entries. It might take you a little longer than 29 days, but that's okay. हाँ, don't take 2 months now. On day 30, take out an hour. Sit at a place that makes you happy and read all the 29 entries. Then answer these same questions about the last 29 days. मतलब, what filled me with enthusiasm this month? What drained me of energy this month? And what did I learn about myself this month? This time, write single sentences. क्योंकि ये जो आपकी 30th डे वाली एंट्रीज हैं, ये उन्हीं एंट्रीज से बन के आएंगी जो आपने 29 डेज पे की हैं. Now, according to Alex,
the clarity you will get has the power to change the course of your life. He mentioned a very important thing जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी. He said कि you might get different answers every year and it's a good thing because if you get the same answers, it means that you are in the same place in life, which I think I don't want and many of you don't want either. It's a wonderful, wonderful conversation and you must listen to it. I will link it in description. So मैंने आज सुबह ही इस एक्सरसाइज के बारे में सुना है और अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, but it has come to me at the right time in my life. मैं ये शुरू करूंगी आज से ही और देखते हैं क्या होता है. I might even do an episode about it. इसी एपिसोड में मुझे 3 एपिसोड के आइडियाज तो आ गए हैं ऑलरेडी. अगर आपको भी ये 30 डे चैलेंज इंटरेस्टिंग लगा है तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा. दिस ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि यू कैन नेवर फिगर आउट लाइफ टू द टी एंड दैट्स टोटली फाइन. क्योंकि अगर सब परफेक्ट है तो फिर अब आगे करोगे क्या आप. इस एपिसोड में मुझे यही बात करनी थी बट कंक्लूजन एंड सोल्यूशन क्लियर नहीं था, जबकि आज ही रिकॉर्ड करना था. एंड लुक एट हाउ यूनिवर्स सेंट मी एवरीथिंग आई नीडेड टू हेल्प माई सेल्फ एंड प्रॉब्ली टू हेल्प यू टू इन सम वे. तो मेरी सैसी नारी, लाइफ को धीरे धीरे फिगर आउट करते रहो और जरूरत से ज्यादा टेंशन मत लो, चाहे जो भी एज हो आपकी. लेट्स डू दिस 30 डे चैलेंज टू एंड सी वेयर इट टेक्स अस. तो ये था मेरा एपिसोड 97 जिसमें मैंने बात की अपनी लाइफ के इस सीजन के बारे में कि मैं कैसा फील कर रही हूँ और मैं किस तरीके से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई बिलीव कि आपको भी किसी ना किसी तरीके से रिलेटेबल लगा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी. सो इफ दिस एपिसोड हेल्प यू इन सम वे, इट कैन हेल्प द पीपल यू केयर अबाउट. सो डू शेयर इट विद maybe 2 people you care about or give it a shout out on Instagram and tag me at Little Fixes Podcast. And do subscribe to Little Fixes Podcast on your podcast app, चाहे वो Spotify हो, Amazon Music, गाना या फिर Apple Podcast, Google Podcast, कुछ भी. Now I'm not dropping any hints about episode 98 क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या रिलीज करना है. So wait for the surprise. तो अब मिलते हैं 20 सितंबर को. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.